Okay, class 7. Today we are going to study our lesson 19 and it is punctuation and capitals. So let's see. Here the punctuation marks have been given. Have been given over here and its names also. यहाँ पे उनके names भी दिए गए हैं. So let's see. First of all, these punctuation marks. The following are the principles, stops, marks or signs of punctuation. Punctuation as you all know that कि किसी भी sentence में हम punctuation sign का use करते हैं. Okay, to make a pause or to stop. Okay, इन सारी चीज़ों के लिए. और if we have to write anything in quotation में लिखना होता है या फिर capital letter in bracket, question mark sign, exclamation sign, all these are called the punctuation marks and the capital letter is also included in this. So today we are going to study about the punctuations and capitals. So let's see. Here you all can see that the punctuation marks and its name also is given over here. So let's see. First one is full stop. Full stop, this is the sign of full stop, you people know very well. Next, comma. Okay, semicolon, colon, here it is. Next, dash, inverted comma. दो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है और एक डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है. ओके, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन साइन इसे कहते हैं. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन साइन. ब्रैकेट्स और भी तरह के होते हैं. ओके, नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी होता है आपका, लाइक आप एपोस्ट्रोफी एस ऐसे राइट करते हैं. नेक्स्ट इज हाइफेन, हाइफेन का यूज़ भी किया जाता है. कैपिटल लेटर, you people know very well about this. So as you all know that we use these punctuation marks in a sentence में हम इन punctuation marks को का use करते हैं. One by one we will study about these punctuation marks. So let's see, first one was our full stop. Let's see. Full stop, the full stop indicates the longest pause. It should never be used until the end of a complete sentence is reached. It is used. Okay. Full stop क्या indicate करता है? The longest pause means when we are writing a sentence, जब भी हम कोई sentence लिख रहे होते हैं तो जब हमें last में stop करना होता है, ठीक है, longest pause हम stop को कहते हैं, ठीक है, then we put a full stop over there. तो हम एक full stop लगाते हैं. ओके, इट शुड नेवर बी यूज्ड अंटिल द एंड ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस इज रीच्ड. ठीक है, जब तक कि कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, जब तक हम सेंटेंस के एंड पे रीच नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं पहुंचते हैं, तब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं. ओके, सो फुल स्टॉप इज यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, मीन्स व्हेन द सेंटेंस इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट, let's see, some of the points are also given over here. A, at the end of an assertive or imperative sentence. Assertive sentence, you must be knowing that assertive sentence कौन से होते हैं? जो simple sentences होते हैं, means positive और negative दोनों हो सकते हैं. Okay, and assertive sentence में के complete होने पे हम last में full stop का use करते हैं. एंड द इम्परेटिव सेंटेंस ऑल्सो. इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं, मीन्स वो सेकेंड पर्सन से कहे जाते हैं, बट वी डोंट मेंशन द सेकेंड पर्सन, हम उस सेकेंड पर्सन को मेंशन नहीं करते हैं. ओके, सो दैट इज नोन एज आवर इम्परेटिव सेंटेंस. एंड in the imperative sentence, at the end of the sentence, imperative sentence and assertive sentence, we put the full stop. Here you can see. Now let's see, some of the examples are also given over here. First one, post the letter. पोस्ट द लेटर, यहाँ पे आपका ये क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंस है, बिकॉज इट हैज़ बीन स्टार्टेड विद पोस्ट एंड इट इज़ द वर्ब पोस्ट द लेटर. आफ्टर दैट फुल स्टॉप लगाया गया है, मीन्स द सेंटेंस इज कंप्लीट. नेक्स्ट वन इज द सेकेंड वन,
लव योर कंट्री, लव योर कंट्री आपको कहा जा रहा है, ठीक है। सो हियर ऑल्सो दिस इज ऑल्सो योर इम्परेटिव सेंटेंस बिकॉज लव इज योर वर्ब and the sentence is complete. That's why we have put full stop at the end of this sentence. Next, the third example is Chandigarh is the capital of पंजाब एंड हरियाणा। इस सेंटेंस में आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है हरियाणा तक, ठीक है। सो आफ्टर हरियाणा, हरियाणा के बाद हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया है। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। If I am talking about an assertive sentence, another assertive sentence की लाइक आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ओके। देन ऑल्सो आफ्टर दिल्ली वी विल पुट अ फुल स्टॉप बिकॉज इट इज़ आवर assertive sentence means, okay, that's why we can write use the full stop in these type of sentences. Now the second point is after initials or abbreviations as, अब यहाँ पे जो abbreviations होते हैं क्या होते हैं, लाइक एग्जाम्पल एम ए किसके लिए यूज़ किया जाता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए, बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बी ए का यूज़ करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए। तो जब भी हम एम ए राइट करते हैं मीन्स ये एक एब्रिविएशन है, तो हम एम के बाद फुल स्टॉप लगाते हैं एंड ए के बाद ही फुल स्टॉप, ठीक है। एम मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट, ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं, दैट्स वाई वी पुट फुल स्टॉप ओवर हियर। एंड नेक्स्ट हॉर्न्स, ऑनरेबल के लिए हॉर्न लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। वी कैन से डॉट ऑल्सो, हम उसे डॉट भी कहते हैं, ओके, लाइक जब हम इसे इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर बी ए दिया होता तो बी ए भी राइट करते हैं, ठीक है। बी एस सी में आप देखते हैं बी के बाद फुल स्टॉप मीन्स डॉट लगा होता है आफ्टर दैट एस सी के बाद, ठीक है, मीन्स वो कंप्लीट नहीं है एंड शॉर्ट फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं फुल स्टॉप ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट इज it is used as the end of every sentence when the sentence is it is used as the end of the at the end of the every sentence except when the sentence is a question or an exclamation, ठीक है। ये जो फुल स्टॉप होता है वो हर सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, दिस पीपल नो वेरी वेल, एक्सेप्ट किसके अलावा, सिर्फ whenever a sentence is a question, अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन है तो हम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं उसके एंड में। एंड इफ़ अ सेंटेंस इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है अगर कोई, तो उसके लास्ट में भी हम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं, वी यूज़ द एक्सक्लेमेशन साइन एट द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फुल स्टॉप कि फुल स्टॉप का यूज़ हम तब करते हैं जब भी कोई सेंटेंस कम्प्लीटली एंड हो गया रहता है, लास्ट में एकदम यूज़ करते हैं, और उससे हमें ये भी पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट है, आपको मैंने सेकेंड पॉइंट बताया कि एब्रिविएशंस के साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वी यूज़ फुल स्टॉप विद द एब्रिविएशंस ऑल्सो, शॉर्ट फॉर्म्स जो होते हैं। Next, the third point I told you that if there is except the question or a exclamation, अगर कोई क्वेश्चन सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है या फिर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसके अलावा हम हर सेंटेंस के एंड में every sentence we put a full stop at the end of every sentence, okay. Now the second one is comma. Now let's see where we use this comma. Comma का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? It indicates the shortest pause in a sentence. It is used, ठीक है। It indicates the shortest pause. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि full stop का यूज़ हम longest pause के लिए करते हैं, okay. We use it as the longest pause, ठीक है। And here कॉमा का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें सबसे छोटा ब्रेक लेना होता है इन अ सेंटेंस, इट इज़ यूज्ड हियर। A1 between word
or phrases in apposition as Ram, the son of Dashrath, king of Ayodhya, was an incarnation of God. ठीक है, तो इस सेंटेंस में बिटवीन द वर्ड्स और फ्रेज, अगर कोई वर्ड है या फिर कोई फ्रेज है इन अपोजिशन एज, जैसे कि राम कॉमा, राम के बारे में बताया जा रहा है तो हम वी पुट अ कॉमा, उसके बाद हम एक कॉमा लगा देते हैं. ओके, द सन ऑफ दशरथ मीन्स राजा दशरथ का बेटा, दशरथ के बेटे. ओके, किंग ऑफ अयोध्या, और वो क्या थे, अयोध्या के राजा भी थे. ठीक है, किंग ऑफ अयोध्या वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, वो भगवान की एक रूप थे, स्वरूप थे. ठीक है, सो हियर यू कैन सी कि हमने छोटे छोटे पॉज के लिए, शॉर्टेस्ट पॉज के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया है. राम के बाद कॉमा राइट किया गया है. आफ्टर दैट द सन ऑफ दशरथ, आफ्टर दैट किंग ऑफ अयोध्या, and at last we have written completed the sentence and put a full stop at the end of this sentence. अब ये sentence आपका क्या हो गया, complete हो गया. Like that only another example we can see. Socrates the great philosopher was poisoned. Socrates the great philosopher was poisoned. Socrates के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक ग्रेट महान was द ग्रीक फिलोसोफर, ग्रीक के फिलोसोफर थे. ओके, वॉज पॉइजन, उन्हें जहर दे दिया गया था. सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिलोसोफर ओनली. नेक्स्ट वन इज B1, बिटवीन 3 or more words of the same part of speech when only the last 2 are connected by and, as poetry, music and painting are fine arts. ओके, और कब हम कॉमा का यूज़ करते हैं, लेट्स सी इन द B पॉइंट, बिटवीन 3 और मोर वर्ड्स, 3 या 3 से अधिक वर्ड्स होते हैं ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच. अगर किसी पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या 3 से अधिक वर्ड्स होते हैं तो उनके बीच में हम कॉमा का यूज़ करते हैं. व्हेन ओनली द लास्ट 2 आर कनेक्टेड बाय एंड, जब जो वो वर्ड्स हैं उनके जो लास्ट 2 वर्ड्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं, एंड से कनेक्टेड हैं. ओके, एज पोइट्री, म्यूज़िक एंड पेंटिंग आर फाइन आर्ट्स. ओके, जैसे कि कोई पोइट्री है, म्यूज़िक है या फिर पेंटिंग है. ओके, यहाँ पे ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये दिस इज़ योर एग्जाम्पल कि पोइट्री कॉमा म्यूज़िक एंड पेंटिंग आर फाइन आर्ट्स. मीन्स पोइट्री, म्यूज़िक और पेंटिंग क्या है, फाइन आर्ट्स हैं. यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है. सो हियर वी हैव यूज्ड, पोइट्री के बाद कॉमा यूज़ किया गया है. आफ्टर दैट म्यूज़िक एंड पेंटिंग तो एंड से जोड़ा गया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग कॉमा ओवर हियर. आर फाइन आर्ट्स, वो क्या है, हमारे फाइन आर्ट्स हैं. So in this way we can use comma. Next, the C point, after each pair of words connected by and, as high and low, rich and poor, wise and foolish are equal before death. Okay, after each pair of words connected, जब भी कोई वर्ड्स को हम कनेक्ट करते हैं, मीन्स 2 वर्ड्स को अगर हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, लाइक हियर इन द एग्जाम्पल यू कैन सी हाई एंड लो. ठीक है, 2 पेयर ऑफ वर्ड्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं, हाई और लो, ऊंचा नीचा. ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज़ कर रहे हैं. आफ्टर दैट ये एक पेयर है आपका हाई लो कॉमा, हाई एंड लो कॉमा, रिच एंड पुअर कॉमा, वाइज एंड फुलिश. तो ये सारे आपके क्या हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और इनको कनेक्ट करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया. इफ़ यू विल राइट इट लाइक दिस, हाई लो, रिच पुअर, वाइज एंड फुलिश, देन इट विल नॉट लुक गुड, और हमें समझ में भी नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है. सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड, छोटे से पॉज लेकर के हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं. लाइक हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश, ओके, आर इक्वल बिफोर डेथ. मीन्स डेथ के पहले वो सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं. ओके,
Next, the D point is to avoid the repetition of a verb. जब भी हमें वर्ब को बार बार रिपीट नहीं करना होता है, ओके, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द वर्ब वी यूज़ द कॉमा. हम कॉमा का यूज़ करते हैं, मीन्स वर्ब को बार बार रिपीट नहीं करने के लिए. ठीक है, लाइक हियर मोहन इज़ अ पंजाबी कॉमा मुखर्जी कॉमा अ बंगाली. ओके, यू आर अ यूरोपियन, आई एन इंडियन. ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस सेंटेंस यू पीपल कैन सी दैट मोहन इज़ अ पंजाबी, मोहन पंजाबी है, कॉमा मुखर्जी अ बंगाली. यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहन पंजाबी है और कॉमा मुखर्जी क्या है, एक बंगाली है. सो हियर वी आर नॉट यूजिंग द वर्ब अगेन एंड अगेन. यहाँ पे हम वर्ब का यूज़ बार बार नहीं कर रहे हैं. इवन वी हैव टू राइट, वी हैव टू टेल अबाउट बोथ द सेंटेंसेस. दोनों के बारे में हमें बताना है कि मोहन आपका पंजाबी है और मुखर्जी आपका बंगाली है. सो टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ वर्ब, वर्ब के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने किसका यूज़ किया है, कॉमा का यूज़ किया है. नेक्स्ट, यू आर अ यूरोपियन कॉमा आई एन इंडियन. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यू आर अ यूरोपियन, कि तुम एक यूरोपियन हो, आई एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ. तो यहाँ यू आर, आर वर्ब का यूज़ किया गया यहाँ पे. यू आर अ यूरोपियन, तुम एक यूरोपियन हो, एंड आई एन इंडियन, और मैं एक भारतीय. तो जब यहाँ पे आर का यूज़ कर दिया गया है, सो नो नीड टू रिपीट द वर्ब. उस वर्ब को रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड वी आर यूजिंग ज्वाइनिंग दीज वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ कॉमा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉमा, कि कॉमा इज़ यूज्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पॉज. छोटे से पॉज लेने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं. ठीक है, या फिर वर्ड्स और फ्रेजेस के बीच में हम यूज़ करते हैं, ओके, कॉमा का, जैसे कि मैंने आपको बताया इन दीज एग्जाम्पल्स. ठीक है, नेक्स्ट, 3 और मोर वर्ड्स होते हैं अगर सेम पार्ट ऑफ स्पीच के. ठीक है, देन ऑल्सो वी यूज़ दिस कॉमा. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट आई टोल्ड यू दैट जब भी पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, पेयर वर्ड्स होते हैं तो उनके लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं. अदरवाइज इट विल नॉट मेक सेंस, नहीं तो उसका कोई सेंस समझ में नहीं आएगा. एंड द फिफ्थ पॉइंट आई टोल्ड यू, फोर्थ पॉइंट आई टोल्ड यू वॉज दैट टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ वर्ब. वर्ब को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं. Now let's come on the semicolon. The third one is semicolon. The semicolon is a longer pause than the comma. Semicolon आपका comma से थोड़ा लंबा pause होता है. ठीक है, it is used for greater emphasis, और इसे greater emphasis के लिए यूज़ किया जाता है. Like let's see the points. To separate coordinate clause joined by conjunctions. Okay, so far, otherwise, while, or, whereas, nevertheless, etc. As I had no money, nevertheless I helped him. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जिन्हें हम कंजंक्शन के साथ जोड़ते हैं. ओके, लाइक वी कैन यूज़ वेयर एज, वाइल, ओके, दैट, ये सारे आपके क्या होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं. एंड विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस, जिन क्लॉज को हम जोड़ते हैं, ओके, उन्हें हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. एंड दीज आर जॉइंड बाय द कंजंक्शंस. ये कंजंक्शंस हैं आपके सो फार, अदरवाइज, वाइल, और वेयर एज, नेवरदलेस, ओके, दैट,
बट, ये सारे भी आपके कंजंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू आप कोऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं. एज आई हैड नो मनी, नेवरदलेस आई हेल्प्ड हिम. आई हैड नो मनी मीन्स मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, पैसे नहीं थे. नेवरदलेस आई हेल्प्ड हिम, फिर भी मैंने क्या किया, उसकी हेल्प की. सो नेक्स्ट पॉइंट इज टू एम्फसाइज द various clause as we want house in live in, clothes to wear, food to take, water to drink, hour to breathe in. ठीक है, to emphasize the various clause, जो तरह तरह के मीन्स डिफरेंट क्लॉज होते हैं, ठीक है, उन्हें एम्फेसाइज करने के लिए हम सेमी कोलन का यूज़ करते हैं. लाइक एज वी वॉन्ट हाउस लिव इन मीन्स हमें घर चाहिए रहने के लिए, ठीक है. क्लॉथ्स टू वियर, इन सब का एक ही मीन्स मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम मीन्स ज़रूरत के बारे में बात की जा रही है. तो किन ज़रूरतों के बारे में बात की जा रही है? हाउस की बात की जा रही है रहने के लिए, क्लॉथ्स की बात की जा रही है पहनने के लिए, फूड की बात की जा रही है खाने के लिए, और वाटर की बात की जा रही है ड्रिंक करने के लिए, और एयर की बात की जा रही है ब्रीथ करने के लिए. सो in this condition also we can use the semicolon. Next, the C point is to separate pairs of words when each of word is separated by the comma, as sin, crime, air, hear, listen. ठीक है, टू सेपरेट पेयर्स ऑफ वर्ड्स, जब पेयर्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम सेपरेट करने के लिए भी सेमी कोलन का यूज़ करते हैं. ओके, जैसे पेयर ऑफ वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं एज, सिन, क्राइम, फिर ये दो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, इन्हें अलग करने के लिए हम सेमी कोलन का यूज़ करते हैं. एंड नेक्स्ट इज एयर, हेयर, नेक्स्ट हियर, लिसन. तो यहाँ पे आपको ये एक जैसे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सिन और क्राइम दोनों एक ही चीज़ है और ये दोनों का मीन सेम है. दैट्स वाई वी आर सेपरेटिंग इट विथ दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स से हम इन्हें सेपरेट कर रहे हैं. सो in this semicolon we understood that with the to separate the coordinate clause or to emphasize the various clause, जो आपके clause होते हैं उनको emphasize करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए, and to separate the words, पेयर ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं. सो दिस वाज दीज वर द 3 पंक्चुएशन साइंस.